Hello everyone, my name is Amit Malloi and welcome to online platform of Rouse Academy. Let's begin with today's daily news review. In a first, we will discuss about a case of defamation which was filed against Rahul Gandhi in which he has been sentenced to 2 years jail. And simultaneously, because of 2 years jail term, his member of parliament seat has been declared vacant from Wayanad by the Lok Sabha secretariat today. So, what is defamation? Defamation, which is defined in detail under section 499 of IPC, says that if any person by his words, oral words, written or published somewhere, if he makes any derogatory remarks against any other individual, community, religious group of people, then it amounts to defamation. And section 500 of IPC provisions for punishment for defamation, punishment. और ये punishment जो है 3 तरह की punishment की ये बात करता है, या तो 2 साल तक का मैक्सिमम 2 year जेल टर्म और फाइन और बोथ फाइन प्लस जेल whichever the court may seem sentence to the person. मतलब जो भी कोर्ट को अच्छा लगे वो इन तीनों ऑप्शन में से है ना दे सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द डिफेमेशन ही हैज मेड. सो अंडर सेक्शन 500 Rahul Gandhi is found guilty and has been punished by 2 years of jail term, जिसकी वजह से उनकी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट मेंबरशिप हैज बीन डिसॉल्व्ड और बोल सकते हैं कि खारिज कर दी गई, उनको निष्कासित कर दिया गया पार्लियामेंट से, ये कहा जा सकता है खत्म कर दी गई. अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से संबंधित कल भी हमने मामला देखा था. बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन बेसिस ऑफ criminal conviction has not been given anywhere in the constitution. It has been provisioned by section 8 of RPA Act. There are various sections of RPA Act which provisions for disqualification of an MP. Section 8 is one of them, which provisions for disqualification of a member of parliament or member of legislative assembly on grounds of conviction of offense attracting not less than 2 years of jail term. अगर 2 साल के जेल टर्म का कन्विक्शन हुआ है, ठीक है, अंडर एनी ऑफेंस, देन सेक्शन 8 ऑफ आरपीए सेज दैट हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट विल बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, he will be disqualified as a member of parliament. तो ये सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट के अंतर्गत इनकी मेंबरशिप भी डिसॉल्व कर दी गई. ठीक है, पर इसमें पहले प्रावधान था कि अपील्स की जा सकती थी, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था. लेकिन एक केस हुआ, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2013. लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013. In this case, Supreme Court gave the verdict of immediate disqualification. Immediate disqualification. As a person attracts conviction of not less than 2 years of jail term, as soon as he has been convicted, his membership shall be immediately revoked from the parliament. So this was a Supreme Court judgment in 2013. On this judgment, opposed to this judgment, UPA government of that time moved a ordinance that there should be a suitable time for appeal. Then only parliament speaker will decide to immediately disqualify or not on the on those grounds. But this UPA ordinance was being opposed by Rahul Gandhi himself, that this is wrong, and he told that
It is absolutely nonsense. It should be torn off. And on 2nd October 2013, this ordinance was called back and it never became a law. So the round and merry-go-round trip again came back to Rahul Gandhi himself. And because of this ordinance not being enforced, no law being enforced, which could save him from this conviction and disqualification of his membership of parliament. So this whole episode took place. What are other processes or other clause or other provisions under which a membership of the parliament or membership of legislative assembly could be revoked, or a member can be disqualified for a legislative assembly or parliamentary membership? So there are various other provisions also. We will see those also relating to this article. The first two are mentioned in the constitution itself, that is article 102. Article 102 mentions that disqualification of MP on grounds of office of profit, unsound mind, insolvent and not having a valid citizenship. तो कौन कौन से ग्राउंड बता दिए? एक तो बता दिए अनसाउंड माइंड, ठीक है, उसके बाद इंसॉल्वेंट दिवालियापन. Then we also have, if the member is not having a valid citizenship, and we also have office of profit. So under article 102, on these grounds, MP can be disqualified. And same applies to member of legislative assembly under article 191. So this one is for member of parliament, and this article reading the same words for MLA, member of legislative assembly. So these are the grounds for disqualification mentioned in the constitution itself. Apart from this, there are two more laws. One is RPA, Representation of People's Act, 1951. Under this, section 8, section 9, 10 and even 11. All these provisions for disqualification. ठीक है. सेक्शन 8 तो क्रिमिनल कन्विक्शन के केस में, कन्विक्शन के केस में कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट if he is convicted for a jail term of not less than 2 years, he will be disqualified from the from his seat of member of parliament. So first one is section 8, second is section 9, ठीक है, on grounds of corruption or disloyalty or involving in contract, being present as a lawmaker as well as in contract with the government. तो ये काम करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. सेक्शन 10, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फेलियर टू लॉज एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस. इलेक्शन एक्सपेंसेस अगर फेल हो जाते हैं और उनको एक्सपेंडिचर जो है उसका अकाउंट जो ब्यौरा देने में फेल हो जाते हैं, तो उस केस में सेक्शन 10 के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. सेक्शन 11 अगेन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस. तो ये भी एक प्रावधान है. इसके अलावा एक और है, दैट इज डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. दैट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी के लिए किया गया था. ठीक है. सो ये सब ग्राउंड्स हैं जिनके माध्यम से किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप जो है रिवोक की जा सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी मेंबरशिप से उनको निष्कासित किया जा सकता है, उनके पद को समाप्त किया जा सकता है. ठीक है. तो ये सारे प्रावधानों के अंतर्गत ये किया जा सकता है. ठीक है. रिसेंटली द सेम हैज बीन डन विद राहुल गांधी. ठीक है, मेन अपोजिशन लीडर एट प्रेजेंट. चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया रिजेक्ट्स J&J जॉनसन एंड जॉनसन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑफ टीबी ड्रग. जॉनसन एंड जॉनसन ने एक टीबी ड्रग बनाया था जिसका नाम है बेडाक्यूलिन, और
ये ड्रग जो है, देखिए टीबी में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज होता है सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस स्टेज, फिर होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेज, और एक होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस हैं टीबी की। जब व्यक्ति को सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस और एमडीआर होने लगता है, उस समय पर बेटाक्यूलिन जो है एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, इन स्टेजेस में एक्सडीआर जब हो जाए, जब कोई भी ड्रग काम ना करे तो फिर तो कोई ड्रग काम करेगा ही नहीं, लेकिन एमडीआर और एसडीआर के केस में दिस ड्रग हेल्प्स पीपल। ठीक है, सो बेटाक्यूलिन इज वन सच ड्रग विच इज एन एंटी टीबी थेरेपेटिक ड्रग। ठीक है, जिसका पेटेंट अभी तक जे के पास है। ये पेटेंट चलेगा जुलाई 2023 तक। ठीक है, और उन्होंने फिर से फाइल किया है पेटेंट एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, बट वो पेटेंट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट जो है दैट हैज बीन डिनाइड बाय इंडियन पेटेंट अथॉरिटीज, इंडियन पेटेंट ऑफिस। ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की कुछ क्लॉजेस हैं जिसके अंतर्गत इन चीजों को बैन किया जाता है, एक्सटेंशन को। बेसिकली देयर इज वन सच टर्म यूज्ड हियर, दैट इज एवरग्रीनिंग। व्हाट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट? व्हेन the patent holder tweaks certain changes या make certain changes in the drug in order to extend his patent and term to harvest the profit coming out from that patented product. So that is known as evergreening. अगर मैं उस ड्रग में कोई भी ऐसा छोटा सा चेंज कर दूं और कहूं कि देखो ये नया चेंज, या फिर कुछ ऐसी चीज वापस से नहीं बता दूं जिससे कि मेरा पेटेंट टर्म एक्सटेंड हो जाए, उसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। बट इंडियन पेटेंट एक्ट के सेक्शन 3D, सेक्शन 53(4), सेक्शन 107A, इन सब सेक्शंस के अंतर्गत इंडियन पेटेंट एक्ट इन मिसचीव्स को, जो कि पेटेंट होल्डर बार बार करते हैं और भूल जाते हैं अपना मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स, और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड बन जाते हैं और पेटेंट को एक्सटेंड करते रहते हैं और कस्टमर से ज्यादा पैसा लूटते हैं, तो उसके वजह से पेटेंट एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान रखे गए जिससे कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के जैसे अटेम्प्ट से बचा जा सके। ठीक है, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर केस में पेटेंट होल्डर को, जे को एक्सटेंशन नहीं दिया। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? पेटेंट होल्डर को पेटेंट नहीं दिया तो इस ड्रग का जेनरिक ड्रग्स बनना चालू होंगे, जेनरिक ड्रग्स विच विल बी मच चीपर। जो पहले कोर्स पूरा $400 का मिलता था, वो काफी सस्ते में मिलेगा, और सस्ता मिलेगा तो इट वुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, और जिसकी वजह से 55,000 जो एक्टिव केसेस हैं टीबी के, एमडीआर टीबी के, उनको सहायता मिल पाएगी। ठीक है, और उनको इससे ट्रीट करने का काम किया जा पाएगा। ठीक है, ये डिसीजन आया है एक अच्छे दिन पर जिसको हम बनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे के नाम से, दैट इज 24 मार्च। हाँ, टीबी हैज बीन इन न्यूज। आज ही 24 मार्च को स्टॉप टीबी बोर्ड की बैठक भी चल रही है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस ओकेशंस टुडे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड टीबी डे, और ये अच्छा जजमेंट भी आया है विच इज एंटी टीबी ड्रग के लिए ही आया है। ठीक है, सो दैट इज गुड न्यूज टू बी हर्ड और रेड इन द न्यूज़पेपर। 40 साल के बाद कोई ड्रग बना था, उसको भी पेटेंटेड ड्रग के नाम से काफी समय तक बेचा गया, जिसका बहुत ज्यादा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये $400 का कोर्स था जो कि अफोर्डेबल नहीं था लोगों के द्वारा। इसलिए अब पेटेंट खत्म करके जेनरिक ड्रग बनाए जा सकेंगे, चीपर रेट्स पर, एक्सेसिबल रेट्स पर अवेलेबल हो पाएगा ड्रग, और ये वर्ल्ड टीबी डे के दिन ये न्यूज मिलना अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू गुलेटिन। देखो, राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ कुड नॉट फंक्शन ऑन द सेकंड लेग ऑफ बजट सेशन, और जिसकी वजह से 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर जो है उसको बिना कोई ज्यादा डिस्कशन के पास कर दिया गया, और आज 24 मार्च 2023 फाइनेंस बिल 2023 को भी पास कर दिया गया। ठीक है, और जब कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ द लॉकजैम इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा उसमें फंस जाता है, एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कोई मामला फंस जाता है, तो उस केस में पार्लियामेंट का एक, लोकसभा का एक कॉमन एक्सरसाइज है जिसको कहा जाता है बुलेटिन।
ठीक है। गुलेटिन एक समय पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर एक अपरेटस था जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की गर्दन काट दी जाती थी, तो एग्जीक्यूट पर्सन एक डिवाइस यूज की जाती थी। लेकिन यहाँ पर इन लेजिस्लेटिव पार्लेंस गुलेटिन मींस टू बंच टुगेदर एंड फास्ट ट्रैक द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल बिजनेस के जो काम है उनको बंच टुगेदर करके एक्सपीडिट तरीके से उसको पास कर दिया जाए, वॉइस वोट से पास कर दिया जाए बिना कोई ज्यादा डिस्कशन के। ठीक है, सो दैट इज नोन एज गुलेटिन, और ये नॉर्मल आम प्रैक्टिस है लोकसभा के बजट सेशन की। ठीक है, बेसिकली गुलेटिन का मतलब होता है गला काट देना। यहां पर भी हमने डिस्कशन का गला काट दिया और पास कर दिया, इसलिए गुलेटिन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। डिस्कशन होना चाहिए था बजट पर, जो डिस्कशन नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ अनहेल्दी सेशंस गोइंग ऑन इन बोथ द हाउसेस, इस वजह से इसको तुरंत पास कर दिया कि अब लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी बुलेटिन अप्लाई करके इसको आगे बढ़ा देगी। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेस को स्टक नहीं कर सकते, स्टक किया तो फिर पूरा की पूरा कंट्री का जो स्कीम है बजट का शॉर्टेज के कारण वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल से बजट लागू करना है, इसलिए पैसे और डिमांड जो है वो सैंक्शन करनी पड़ेगी। 45 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर की डिमांड जो है सैंक्शन किए गए, अप्रोप्रिएशन बिल सैंक्शन किया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें काम की थी, खासकर बुलेटिन समझाना था, इसलिए मैंने आर्टिकल चर्चा में लिया। बाकी तो आप नॉर्मली न्यूज में पढ़ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैनल क्वेश्चंस। लो एक्सपेंडिचर ऑफ 2 स्कॉलरशिप स्कीम्स। 2 स्कॉलरशिप स्कीम्स में 1% से भी कम जो अलोकेटेड बजट है वो खर्च किया गया है। और वो 2 स्कॉलरशिप स्कीम्स कौन सी है? एक तो पीएम यशस्वी स्कीम है और सेकंड है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स। पीएम यशस्वी स्कीम प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, इसके बेनिफिशियरीज होते हैं ओबीसी, एससी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। और ये स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% शेयर जो है सेंट्रल सेक्टर का है। इसके अलावा एक और स्कीम है पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, फॉर एससीज। ठीक है, बेसिकली इसके बेनिफिशियरी सिर्फ एससीज होते हैं। 2006 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट का शेयर भी है। तो पहले वाली स्कीम है उसका डिले जो है उसको समझाया नहीं जा पाया, क्योंकि दूसरे वाली स्कीम में तो बहाना बनाया गया कि स्टेट का शेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने स्कीम जो है इंप्लीमेंट नहीं की। लेकिन दूसरी वाली जो स्कीम है पीएम यशस्वी योजना है तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, इसमें स्टेट के शेयर का कोई काम नहीं है, फिर ये क्यों नहीं पूरी की गई? तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं हाउस पैनल के द्वारा। स्कीम्स हमारे लिए काम की हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन के लिए रखा था कि पीएम यशस्वी स्कीम फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च की गई, क्या इसके अंतर्गत प्रावधान है, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है? तो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऐसी एक और स्कॉलरशिप स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, है ना, उसमें भी ठीक है बजट अलोकेशन जो दिया गया उससे काफी कम इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, 2,500 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किया गया, जबकि अलॉटेड बजट वॉज 5660 करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हाउस पैनल के द्वारा कि इतना कम यूटिलाइजेशन बजट का क्यों किया गया है, क्योंकि लैप्स हो जाएगा बजट थोड़े समय बाद। ठीक है, इसी तरह की एक और स्कीम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां पर 500 करोड़ रुपए अलॉकेट किया गया था और सिर्फ 56 लाख रुपीस ही खर्च किया गया। तो दिस शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की बजट अलॉकेटेड है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अब कहा जा रहा है कि जो नए प्रोसीजर्स और पॉलिसीज आए हैं इसके कारण से ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पाए, स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है इन स्कीम्स में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं दोनों। ठीक है, उसमें और यशस्वी स्कीम में ये भी बहाना नहीं चल पाया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है नहीं, वो तो 100% सपोर्टेड और फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसलिए वहां पर ये भी नहीं चल पाया। ठीक है, चलिए, तो ये 2 स्कीम्स हमारे काम की थी इसलिए हमने इसको चर्चा में उठाया था। नेक्स्ट देखते हैं SC2 here please against polygamy and nikah halala। मुस्लिम्स में शरीयत लॉ जो है, शरीयत लॉ ऑफ मुस्लिम्स अलाउ मुस्लिम मेल to do 4 marriages, whereas there is a section in IPC, section 494 of IPC, which provisions for punishment in case of bigamy and polygamy। एक से ज्यादा
लाइफ टाइम में एक से ज्यादा शादी करने पर सर्टन कंडीशंस में एक्सेप्शन छोड़ करके अगर पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। बट मुस्लिम मेल्स पर यह कानून लागू नहीं होता, मुस्लिम फीमेल्स पर होता है, बिकॉज शरीयत डू नॉट परमिट मुस्लिम फीमेल्स टू हैव वन और मोर हस्बैंड एट अ टाइम। बट मुस्लिम मेल्स के लिए एक से ज्यादा 4 वाइफ्स रखने का अधिकार उनके पास है, इसलिए 4 मैरिजेस वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब पिटीशन लगाया गया है कि सेक्शन 494 मुस्लिम्स पर, मुस्लिम मेल्स पर अप्लाई क्यों नहीं होता, ठीक है। और ऐसा अगर कोई प्रावधान है, एक्सेप्शन है, तो उसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए मुस्लिम मेल्स को, एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 494 एक्सेप्शन के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए मुस्लिम मेल के लिए। सेकंड है निकाह हलाला। निकाह हलाला एक बहुत पुरानी प्रथा मुस्लिम्स में, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर एक मुस्लिम वुमेन किसी एक्स मुस्लिम मैन के साथ में निकाह उनका हुआ, लेकिन बाद में किसी कारण से उन दोनों की आपस में नहीं पट पाई और डिवोर्स हो जाता है, और थोड़े समय बाद ऐसा लगता है कि डिवोर्स गलत ले लिया और फिर से मैं इनसे रीमैरिज करना चाहती हूं, तो रीमैरिज डायरेक्ट नहीं हो सकती। रीमैरिज डायरेक्ट नहीं हो सकती। क्या करना पड़ेगा मुस्लिम वुमेन को? एक थर्ड पर्सन से पहले शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर तलाक लेना पड़ेगा, उसके बाद रीमैरी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैरिज और तलाक के बीच में द मैरिज शुड ऑल्सो बी कंज्यूम्ड, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ मैरिज शुड बी देयर, कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज शुड बी देयर, तो ये भी होना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, होल प्रोसेस इज नोन एज निकाह हलाला, the process which provides for remarriage of this remarriage for Muslim women with the same person from whom she has seeked divorce in past is known as nikah halala. So the whole process has been challenged in the court कि इसको भी struck down करना चाहिए, because this is also against the dignity of the woman, और ये प्रोसेस जो है काफी पुरानी है, दकियानूसी है, ठीक है। तो इसको अब 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सुनेगी, ऐसा सोचा जा रहा है, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेस मस्ट रिमेन फ्री इन अ कंट्री इफ अ कंट्री इज टू रिमेन अ डेमोक्रेसी। अगर कंट्री को डेमोक्रेसी रहना है तो प्रेस को क्या रहना चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, ठीक है। सो द होल आर्टिकल विच हैज बीन पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस डील्स विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस की क्या जरूरत है। देखो, फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट प्रेस इज टर्म्ड एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेस का काम है, प्रेस का काम है टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। सिटीजन जो सीधा गवर्नमेंट से नहीं पूछ पा रहे, तो प्रेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो गवर्नमेंट से सवाल पूछ पाए। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है, नीति है अच्छी, तो उसको, उस इंफॉर्मेशन को प्रेस मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से सिटीजन्स तक पहुंचाए। तो कुल मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म की तरह, एक इंटरमीडिएटरी संस्था के तरह काम करता है। और जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सिर्फ एक सिटीजन नहीं, ऐसे हजारों अलग अलग डाइवर्स व्यूज और ओपिनियंस कंट्री में चलते हैं। हर व्यूज और ओपिनियंस को उनको शो करना चाहिए, जिसमें से कुछ प्रो गवर्नमेंट नैरेटिव होंगे, कुछ एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव्स होंगे। सारे नैरेटिव्स को दिखा करके, डाइवर्स व्यूज दिखा करके जनता को भी अवेयर किया जाए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाए। अगर गवर्नमेंट को कहीं कटघरे में खड़ा करना हो तो खड़ा किया जाए, क्योंकि कमजोर के खिलाफ तो आवाज उठाने वाले बहुत हैं। अगर जो कोई ताकतवर व्यक्ति सामने खड़ा है और उससे अगर कोई सवाल पूछा जाए, तो वही तो है असली मजा लोकतंत्र का, ठीक है, कि लोकतंत्र ताकतवर के खिलाफ भी, वन हु इज इन पावर, उसके खिलाफ भी सवाल पूछने की आजादी देता है, ठीक है। दैट इज द ट्रू फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम बोले तो यही है।
कमजोरों से तो कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, सरकार पूछती है, उसमें कोई समस्या है नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा सत्ता में पावरफुल हो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जा सके, तो दैट इज डेमोक्रेसी। और वही प्रेस को करना चाहिए, एंड दैट इज ट्रू जर्नलिज्म। साथ ही साथ ये पूरा आर्टिकल जो है कुछ चैलेंजेस भी बताता है जर्नलिज्म के, जिसमें सबसे पहला चैलेंज इज एड्रेस्ड एज फेक न्यूज, ठीक है, फेक न्यूज, गलत खबरें पहुंचाना। दैट इज सेकंड इज सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। रिसेंटली द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग गिरती जा रही है, जो कि बताती है कि इंडियन डेमोक्रेसी में प्रेस की भूमिका कैसे कैसे डिटोरेट हुई है, ठीक है। हम पास्ट के 1-2 दिन पहले ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें डिस्कस किया था कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन डिटोरेटेड टू अ लेवल दैट वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय पर फ्रीडम ऑफ प्रेस जिस तरीके की थी उसी स्टेज पर वापस से पहुंच चुकी है, सेंसरशिप होना, ठीक है। तो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, ठीक है, उन लोगों की रिपोर्टिंग करना, पेड न्यूज, पैसे के लालच में आकर के एडवर्टीजमेंट को न्यूज की तरह चलाना, पेड न्यूज, ठीक। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक इश्यू जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं मीडिया ट्रायल, जिसको सीजीआई ने अवार्ड फंक्शंस के अंदर भी क्रिटिसाइज किया, ट्रायल, मीडिया ट्रायल्स। So there are various issues which exist in current scenario of journalism, जिसको कि इंडियन जर्नलिज्म इंडस्ट्री को, इंडियन प्रेस मीडिया इंडस्ट्री को, प्रेस को, ठीक है, इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, और ऐसी चीजों पर सुधार की आवश्यकता है, जिसमें सुधार ला करके वास्तविक मायने में फोर्थ पिलर, ठीक है, चौथे स्तंभ के तौर पर लोकतंत्र के खड़े होने का काम मीडिया को करना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी करती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा मैं नहीं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी बताती हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे भरोसा नहीं भी करना है तो भारत में अगर कोई ऐसा निष्पक्ष संस्था भी अगर आप पूछेंगे तो भी वो यही कहेंगे कि दिन भर छोटे छोटे डब्बों में सिर्फ लड़ाने का काम एंकर्स कर रहे हैं, वास्तविक और डाइवर्स ओपिनियन वाली रिपोर्टिंग कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। सरकार के व्यूज बताए जाते हैं, अपोजिशन के व्यूज नहीं बताए जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं कंट्री में, ये बहुत सारे लोगों से आपको सुनने को मिलेगा भी। चलिए, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीसी, ठीक है, इन्होंने एक अच्छा लॉ प्रपोज किया है, ठीक है, पार्लियामेंट, मतलब बेसिकली ही हैज प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सेइंग दैट कि ऑस्ट्रेलिया विच वाज अ लैंड ऑफ एब ओरिजिनल्स, वहां के जो ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको एब ओरिजिनल्स के नाम से हम पुकार सकते हैं, ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3.2% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन, ठीक है, 3.2% ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का एब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और दे आर द फर्स्ट रेसिडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखा गया बिकॉज ब्रिटिशर्स जब कॉलोनियल इरा में थे तब भी उनको मार्जिनलाइज करके रखा गया, ठीक है। उसके बाद उनको वोटिंग के राइट्स 1960 तक नहीं दिए गए। सो नाउ एल्बनीजी वांट्स कि देयर शुड बी अ consultative community in the parliament which will be called as Aboriginal and Torres Straits Islanders voice, ठीक है। तो एक ऐसी कंसल्टेटिव कमिटी बनाई जाएगी पार्लियामेंट के अंदर जिसको कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है, और जिसको एबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स वॉइस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में किया जाएगा, उनकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, ऐसा प्रावधान किया जाएगा। और अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ऐसे करके उन्होंने एक बिल्कुल इमोशनल स्पीच जो है दिया है पार्लियामेंट में, ठीक है। ऐसे कानून से भारत जैसी कंट्रीज को भी सीख लेनी चाहिए, जहां पर बहुत सारे ट्राइबल समुदाय रहते हैं, और उसमें से बहुत से ऐसे ट्राइबल समुदाय हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है, जैसे कि जितने पीवीटीजी ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है, दे आर नॉट सोशली कनेक्टेड, दे आर बेसिकली आइसोलेटेड पॉलिटिकली ऑल्सो, सोशली ऑल्सो, इकोनॉमिकली ऑल्सो फ्रॉम द होल इंडिया, ठीक है। और उनकी आवाज किसी तरीके से अगर पहुंचानी हो संसद तक, उनके लिए अगर कुछ पॉलिसीज बनवानी हो, तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है, ठीक है।
हमने कमीशन जरूर बनाए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन उनमें भी रिप्रेजेंटेशन जो है उन ट्राइबल कम्युनिटीज का है जो कि ऑलरेडी मेन स्ट्रीम के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो चुकी हैं, भील्स, गोंड, ठीक है, ऐसी कम्युनिटीज, ठीक है, ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज। बट वो ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे कि संतलीस ट्राइब हो गई, ठीक है, उनके बारे में कोई अगर लेकर जारवा ट्राइब हो गया, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं छोटी छोटी जो कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल परसेंटेज है, लेकिन फिर भी इनकी आवाज, इनका रिप्रेजेंटेशन कहीं भी हमारे लोकतंत्र में नहीं दिखता। तो उसके लिए हमको भी कुछ कानून बनाना चाहिए इनसे सीख लेके, क्योंकि वो वास्तविकता में वही भारत के मूल निवासी किसी समय पर थे, ठीक है। तो ऐसा माना जा सकता है और ऐसे कानूनों से सीख भी ली जा सकती है, इंस्पायर भी किया जा सकता है। Simultaneously, not only India, various countries in the African continent have aboriginal population, more aboriginal population than the whole country, ठीक है। जितना प्रतिशत एबोरिजिनल्स का वहां पर है, ठीक है, उतना हो सकता है कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा ही हो, ठीक है। तो वहां के देशों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि एबोरिजिनल जो कि उस प्रदेश के या उस कंट्री के वास्तविक निवासी थे, मूल निवासी थे, ठीक है, उनके बारे में उनकी आवाजें जो है संसद तक, पार्लियामेंट तक और लोकतंत्र के गलियारों तक गूंजे, या उनकी आवाज, उनका रिप्रेजेंटेशन पहुंचे, ठीक है, उनके ओपिनियंस पहुंचे, ऐसा कुछ प्रावधान किया जा सके, ठीक है। सो दैट इज अ गुड एंड वेलकम स्टेप बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। चलिए, सो दिस वाज द होल डिस्कशन फॉर टुडेज करंट अफेयर्स डेली न्यूज रिव्यू। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लग रहा है डिस्कशन का, तो नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके, नीचे दिए गए बटन्स पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ठीक है। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।